Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to read chapter number 13, Natural Disasters. Before reading this chapter, let us do this exercise. Take the things that an emergency kit should have. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी किट में कौन कौन से थिंग्स होने चाहिए, आपको वो टिक करना है. ओके, एज आई हैव टिक ऑल दीज 10 आइटम्स, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग ये आइटम्स को टिक करना है जो आपको लगता है कि एमरजेंसी किट में होना चाहिए. देन यू हैव टू राइट हियर हाउ मैनी थिंग्स डिड यू टिक. आपने कितने थिंग्स को टिक किया. एज आई हैव टिक्ड ऑल द 10 आइटम्स, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा. देन सी हियर, येस वी शुड कीप ऑल द अबव थिंग्स इन एन एमरजेंसी किट. जितने भी अबव मेंशन things हैं, like all these 10 things are very essential and we should keep all of them in an emergency kit. Okay students, now let us start reading this chapter, Natural Disasters. Do you know what is the meaning of disaster? Disaster means tragedy or any damage that is caused because of natural reason. जो natural reason से डैमेज या ट्रेजेडी होती है, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर. अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ एनी एक्सट्रीम सडन इवेंट इन द नेचर. जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है या नेचुरल डैमेज होता है वो एक एक्सट्रीम मीन्स टेरिबली, सडन, अचानक इवेंट होता है नेचर में, दैट कैन कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ विच बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है या इवन लॉस ऑफ लाइफ भी होता है. A natural disaster can be evoked. Natural disaster evoke means take place by any environmental factors. जो natural disasters होते हैं वो किसी भी environmental factors के reason से हो सकते हैं, like earthquakes, flood, tsunami. You have to pronounce it as tsunami. T is silent here. Hurricanes and tornadoes are some of the natural disasters that occur in nature. ये सभी कुछ डिज़ास्टर हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो नेचर में होते हैं. चेंजेस इनसाइड द अर्थ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड हैवी रेनफॉल आर सम ऑफ द रीजंस फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स. ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं इनके रीजंस क्या हैं? अर्थ के अंदर कोई चेंजेस होना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होना या फिर हैवी रेनफॉल होना, ये सभी रीज़न होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स के. Let us understand some of the natural disasters in detail. Now let us read about some of the natural disasters in detail. First of all, let us read about earthquake. The surface of the earth that is crushed is not made of one solid piece. We have read earlier कि जो अर्थ का surface होता है crushed, वो एक solid piece से नहीं बनता. It is made up of many pieces. वो many pieces join होके बनता है, where each piece is known as a plate, जिसमें each every single piece को plate बोला जाता है. We call this plate as the tectonic plate. इन plates को tectonic plate बोला जाता है. These plates move constantly. ये जो plates हैं ये constantly move करते रहते हैं. However, they don't move very fast. But वो बहुत ज़्यादा fast move नहीं करते. But an earthquake happens when a tectonic plate drags, bumps or scrapes along another plate. But जो earthquake के बारे में आपने सुना है ये तभी होता है जब ये tectonic plate drag होता है, मतलब खींचता है, bump करता है, jump और scrapes along another plate. दूसरे plates के साथ जब ये टकराता है तो earthquake happen होता है. It is surprising to know that even though such earthquakes happen constantly, we do not feel them because they are either too small or too far below the surface. जैसे हमने यहाँ पे रीड किया कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं जो ये प्लेट्स, तो इसीलिए ये सरप्राइजिंग है कि ये अर्थक्वेक्स कॉन्स्टेंटली हैपन होते रहते हैं बट हम इन्हें फील नहीं कर सकते बिकॉज ये या तो बहुत ही स्मॉल होते हैं या अर्थ सरफेस के बहुत ही बिलो होते हैं. But some earthquakes are so powerful that they can be felt thousands of kilometers away. But कुछ earthquakes ऐसे भी होते हैं, इतने powerful होते हैं कि उन्हें हम feel कर सकते हैं thousands of kilometers away भी. Such powerful earthquakes can cause tsunami, landslides, floods and other destructive events. And because of जो ये earthquakes हैं, tsunami, landslides, flood
और अदर डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स टेक प्लेस करती हैं. When the tectonic plates are moving away from each other, the edges get stuck. जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से मूव अवे करती हैं तो जो उसके एजेस मीन्स कॉर्नर हैं वो स्टक करते हैं. यू कैन सी हियर, ये देखो ये सभी प्लेट्स हैं. जैसे ही ये मूव करते हैं तो ये आपस में जो इनकी एजेस हैं ये एक दूसरे के साथ स्टक करते हैं. while the rest of the plates keep moving. बट जो रेस्ट ऑफ द प्लेट है वो अपने ही प्लेस पे मूव करती रहती हैं. वंस द प्लेट्स मूव फार इनफ द एजेस गेट रिलीज. और जैसे ही ये जो प्लेट्स हैं ये थोड़ी सी फार हो जाती हैं एक दूसरे से, कि जो एजेस हैं ये रिलीज़ हो जाती हैं. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स. और इसी की वजह से वेव्स आते हैं सिमिलर टू रिपल्स इन अ पॉन्ड. जिस तरह से पॉन्ड्स में रिपल्स आते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी वेव्स फॉर्म करती हैं. दीज वेव्स आर नोन एज सेस्मिक वेव्स. इन्हीं वेव्स को सेस्मिक वेव्स बोला जाता है. इट इज़ दीज सेस्मिक वेव्स दैट मेक द ग्राउंड ट्रेम्बल और शेक. एंड बिकॉज ऑफ द सेस्मिक वेव्स, जो ये सेस्मिक वेव्स यहाँ पे आती हैं उसी के कारण जो ये अर्थ है या ग्राउंड है वो ट्रेम्बल या शेक करता है. द लोकेशन इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज़ नोन एज हाइपोसेंटर. सी दिस इज़ द फोकस. जो लोकेशन होता है अर्थ के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है हाइपोसेंटर. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फोकस. ओके स्टूडेंट्स, द रीजन अबव द हाइपोसेंटर और द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज़ नोन एज एपीसेंटर. जो रीजन होता है अबव द हाइपोसेंटर या फिर वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ सरफेस में अर्थक्वेक शुरू होता है, दैट इज़ नोन एज एपीसेंटर. सी फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. सी दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ नोन एज एपीसेंटर. ये फोकस के जस्ट अबव पॉइंट है. ओके स्टूडेंट्स, अ ट्रेमर अकरिंग आफ्टर द मेन अर्थक्वेक्स इज़ नोन एज आफ्टर शॉक. एक ट्रेमर जो ट्रेम्बल करता है या शेक करता है जो अकर करता है जस्ट आफ्टर अर्थक्वेक. जो मेन अर्थक्वेक के बाद जब अर्थ ट्रेम्बल करता है उसे बोला जाता है आफ्टर शॉक. ओके, एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड सिस्मोग्राफ कैन रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ एन अर्थक्वेक. सी दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो सिस्मोग्राफ बोला जाता है. ये रिकॉर्ड कर सकता है अर्थक्वेक की डिटेल्स को. द रिकॉर्डिंग इज़ कॉल्ड अ सिस्मोग्राम. और जो ये रिकॉर्डिंग है, जिस शीट पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को बोला जाता है सिस्मोग्राम. This instrument is seismograph and the recording is known as seismogram. Okay. The strength of an earthquake is expressed as magnitude and can be measured using the Richter scale. जो strength होता है earthquake का उसे बोला जाता है magnitude और इसे measure किया जाता है with the help of a Richter scale. The Richter scale has magnitude level from 1 to 8. See, this is magnitude. मतलब किस strength से या किस स्केल से ये आई है अर्थक्वेक, तो ये 1 से लेके 8 तक होता है. एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इंक्रीजेस, जैसे जैसे अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है, इट्स लेवल ऑन रिचर स्केल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इसका लेवल भी रिचर स्केल में इंक्रीज होता रहता है. थॉस एन अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड 4 कॉजेज लेस डिस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू वन विद मैग्नीट्यूड 7. जो 4 है मैग्नीट्यूड, वो देखो ये लाइट के अंडर में आता है और मैग्नीट्यूड 7 मेजर के अंडर. दैट मीन्स जो 4 है वो लेस डिस्ट्रक्शन कॉज करती है देन मैग्नीट्यूड 7. नाउ लेट अस गो थ्रू अदर टॉपिक. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अ मॉडरेट अर्थक्वेक कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ विंडो पेन्स, रैटलिंग ऑफ अटेंसिल्स एंड क्रैकिंग ऑफ डोर्स. एक मॉडरेट अर्थक्वेक आता है, ये विंडो के पेन्स को ब्रेक कर सकता है, अटेंसिल्स आपस में टकरा सकते हैं और डोर्स भी क्रैक हो सकते हैं. However, an earthquake with higher magnitude, but अगर earthquake higher magnitude से आया है, it can cause catastrophic damage. तो catastrophic damage हो सकता है such as collapsing building, building का गिरना, cracks in ground, ground में cracks आ जाना and loss of life, और किसी की भी life का loss होना. Okay. Precautions during earthquake. An earthquake cannot be predicted, but we can minimize its after effects by following certain practices. Earthquake को हम predict नहीं कर सकते, but हम उसे minimize कर सकते हैं कुछ practices करके.
बेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बेटर कंस्ट्रक्शन करके, एनहांस सेफ्टी सिस्टम को एनहांस करके, एंड इवैक्यूएशन प्लान फॉर बिल्डिंग, और बिल्डिंग से निकलने की एक्स्ट्रा प्लान बना के, परफॉर्मिंग सेफ्टी ड्रिल्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और हमें परफॉर्म करना, लोगों को नॉलेज देना किस तरह से अगर अर्थक्वेक आता है तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस देना डिफरेंट प्लेसेस में. नाउ let us read about earthquake safety plan. Look at the picture to understand some of the basic rules one should follow during an earthquake. earthquake जब भी आता है तो ये बेसिक प्लान है, हमें वो फॉलो करना चाहिए. डोंट पैनिक, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए. ड्रॉप, खुद को कवर करना, किसी भी जैसे टेबल रखा है या किसी भी चीज़ के नीचे आपको हाइड करना होता है, लाइक दिस, एंड यू हैव टू होल्ड इट. प्रोटेक्टिंग योर हेड, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना ताकि आपके सिर पे कुछ फॉल ना हो जाए. टर्न ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना चाहिए. एक्सटिंग्विश फायर, इन केस ऑफ फायर आपको फायर को एक्सटिंग्विश करना चाहिए. फाइंड अ वे आउट, बाहर जाने का आपको रास्ता भी फाइंड आउट करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ और एलिवेटर्स या स्टेयर्स, आपको विंडोज़, एलिवेटर्स और स्टेयर्स से दूर रहना चाहिए बिकॉज ये ब्रेक हो सकती हैं. गो ऑन हायर ग्राउंड, आप जहाँ पे भी हो उससे हायर लेवल पे आपको जाना चाहिए. पे अटेंशन टू रॉक्स फॉलिंग, अगर कहीं पे रॉक फॉलिंग हो रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए और वहाँ से आपको जल्दी साइड हो जाना चाहिए. कीप डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज़, पावर लाइंस, आपको बिल्डिंग्स, ट्रीज़, पावर लाइंस इन सब से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए बिकॉज अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हाई हुआ तो ये सब कोलैप्स हो सकती हैं. हेल्प नेबर्स, इन केस इफ़ यू आर इन सेफ हैंड्स तो आपको अपने नेबर्स की भी हेल्प करनी चाहिए. गो टू असेंबली पॉइंट, आपको असेंबली पॉइंट मीन्स किसी भी खाली एरिया में जाना चाहिए. हेल्प विथ फर्स्ट एड, इन केस किसी को इंजर्ड होता है कोई तो आपको फर्स्ट एड उनको देनी चाहिए. एंड देन द लास्ट वन इज़ स्टे इन्फॉर्म्ड, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करती रहनी चाहिए कि अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. सो these are the basic safety plan during earthquake which you should know as well as you should follow. Okay students, so this was all about today's topic. Read it properly. Thank you and goodbye students.